Welcome all. My name is Yatisha Bhuir, lecturer from Praveen Patil College of Diploma Engineering and Technology. We are studying Computer Peripheral and Hardware Maintenance, that is CPH. Subject code is 22013. We will continue with the chapter 2, part 3 video of chapter 2, that is motherboard. Now in the last video we saw the different parts of the motherboard, how the motherboard looks like, what is the definition of motherboard, what is the working of different parts of the motherboard. So in this video we will see 6 reasons why you should upgrade your PC motherboard. So when your PC is getting slow and it's time to upgrade it, you might wonder, should I upgrade my motherboard? It is an essential component of your system, but it's not always easy to know when you should upgrade your motherboard. Means अगर हमारा पीसी बहुत ही स्लो चल रहा है तो हमें ऐसा कभी कभी लगता है कि मदरबोर्ड को अपग्रेड करने की ज़रूरत है क्या, मदरबोर्ड अच्छे से चल नहीं रहा होगा इसीलिए पीसी हैंग हो रहा है क्या. सो इट कुड बी अ रीज़न. मीन्स इफ़ योर मदरबोर्ड इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली देन ऑल्सो योर पीसी विल बी स्लो. ओके, सो this could be a reason why you should upgrade your motherboard. Okay, so how to upgrade your motherboard and why we upgrade our motherboard. So first of all, it is an essential component of your system. As we all know, without motherboard we can't do anything in the computer, right? Motherboard contains all the component: processor, RAM, ROM, storage devices, hard disks. So motherboard is really important. So without a motherboard, computer is nothing. So if your PC is getting slow day by day, then this could be a reason you should upgrade your motherboard. So replacing the motherboard can be expensive, but it can also bring you benefits in terms of speed, hardware support and better graphics support. So replacing a motherboard, if you want to replace your whole motherboard, अगर पूरा motherboard ही change करना है, so it could be expensive, right? Because आपको उसका रैम चेंज करना पड़ेगा, रोम चेंज करना पड़ेगा, स्टोरेज डिवाइसेस चेंज करने पड़ेंगे, हार्ड ड्राइव चेंज करना पड़ेगा, देन प्रोसेसर भी चेंज हो जाएगा. सो इट इज़ रियली एक्सपेंसिव. इफ़ यू वांट टू अपग्रेड योर मदरबोर्ड, इफ़ यू वांट टू रिप्लेस योर मदरबोर्ड डायरेक्टली, देन इट इज़ एक्सपेंसिव. बट इट कैन ऑल्सो ब्रिंग यू बेनिफिट्स. बट वो बेनिफिट्स भी लेके आएगा, जैसे स्पीड इंक्रीज हो जाएगा पीसी का, हार्डवेयर सपोर्ट बढ़ेगा एंड बेटर ग्राफिक्स सपोर्ट भी मिलेगा. ओके, मीन्स हार्डवेयर सपोर्ट इन द सेंस अपना रैम रोम का जीबी हम लोग चेंज कर सकते हैं. अगर आपके पास 2 GB का रैम है तो आफ्टर अपग्रेडिंग योर मदरबोर्ड आप 4 GB का रैम ले सकते हो. सो इट्स स्पीड विल बी इंक्रीज्ड. देन ग्राफिक्स सपोर्ट अच्छा मिलेगा, जो पिक्चर क्वालिटी है वो अच्छा दिखेगा, राइट? सो why we should upgrade our motherboard? First reason is for faster CPU. So as we all know, for faster CPU we should upgrade our motherboard. Like CPU means what? CPU is nothing but the processor, right? अगर प्रोसेसर हमारे पास कोई है एंड इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अगर मैंने अपग्रेड किया प्रोसेसर को, अगर मेरा i5 प्रोसेसर है, मैंने i7 ले लिया, तो ऑब्वियसली इट इज़ प्रोवाइडिंग मी डिफरेंट स्पीड, राइट? सो स्पीड हमारा इंक्रीज अगर हुआ तो प्रोसेसिंग के ऑपरेशंस इंक्रीज हो जाएंगे. जैसे अगर हम लोग कोई ऑपरेशन कर रहे पीसी पे, सो ऑल द प्रोसेसिंग ऑपरेशंस इज डन बाय द CPU, राइट? इज डन बाय द प्रोसेसर. सो अगर प्रोसेसर मैंने अच्छे क्वालिटी का लिया, अगर प्रोसेसर मैंने अपग्रेड किया जिसमें और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो your CPU will be faster, right? Your processor will be faster. So this could be an advantage. Second is for faster RAM. So जैसे अगर हमारे पास मदरबोर्ड में 2 GB का रैम है, अगर मैंने 4 GB का रैम ले लिया, सो ऑब्वियसली इट इज़ बेटर, राइट? 2 GB रैम ज़्यादा स्टोर कर पाए क्योंकि 4 GB रैम स्टोर कर पाएगा. ऑब्वियसली इट इज़ 4 GB बिकॉज रैम, what is the full form of RAM? RAM is a random access memory and RAM is used to store all the background application temporary data, right? So if you upgrade your RAM, अगर हम लोगों ने RAM को अपग्रेड किया
अगर रैम का GB हम लोगों ने इंक्रीज किया, 2 GB की जगह पे अगर हम लोगों ने 4 GB का रैम ले लिया या फिर 8 GB का रैम ले लिया, सो वो ज़्यादा बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को स्टोर कर पाएगा, राइट। ज़्यादा बैकग्राउंड एप्लीकेशन स्टोर होंगे उसमें। एंड देन हमारा रैम का स्पीड अगर बढ़ गया तो ऑपरेशंस का स्पीड बढ़ेगा। इफ़ आई एम मिनिमाइजिंग 10 एप्लीकेशंस, अगर मैं 10 एप्लीकेशंस एक ही टाइम पे यूज़ कर रही हूँ, राइट, सो मेरा PC हैंग नहीं होना चाहिए। सो ऑल दिस बैकग्राउंड एप्लीकेशंस, ऑल दिस 10 एप्लीकेशंस, if I want to use it simultaneously, then it will be stored in the temporary memory, that is RAM. It will be stored in the temporary memory. वो temporary memory में store हो जाता है। So अगर हमारा RAM जो है वो ज़्यादा बैकग्राउंड एप्लीकेशन को स्टोर कर पा रहा है तो ऑब्वियसली अपना प्रोसेसिंग ऑपरेशन, अपने जो ऑपरेशंस है, जो हम लोग ऑपरेशंस करते हैं कंप्यूटर में, वो फास्ट हो जाएंगे। तो RAM इज़ इम्पॉर्टेंट. If you upgrade your RAM, then it will be really beneficial. Third is for better graphics card. So graphics card is the important, right? If you want to see good quality of your pictures, if you want to see good quality of your screen resolution, then graphics card is important. So graphics card, for better graphics card we should upgrade your motherboard, right? So graphics card is also important for playing HD games, for seeing good movies in the HD quality. Graphics card is important, right? Now the next is for faster data transfer. So faster data transfer in the sense, if you want to transfer a data, जैसे अगर डेटा ट्रांसफ़र कैसे होगा, अगर मैंने मेरे CPU को पेन ड्राइव अटैच किया और मुझे कंप्यूटर में से फ़ोटो जो है वो पेन ड्राइव में लेने हैं, सो दिस इज़ डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम कंप्यूटर टू पेन ड्राइव, राइट। सो अगर एक ही टाइम पे मैं बहुत सारे फ़ोटोज़ ले रही हूँ तो जो फ़ोटो लेने का स्पीड है वो ज़्यादा हो जाता है। इफ़ आई एम टेकिंग 10 फ़ोटोज़, राइट, सो वो कम टाइम में पेन ड्राइव में आ जाएगा। अगर मैंने एक ही टाइम पे 100 फ़ोटोज़ लिए तो उसको मेरे पेन ड्राइव में आने के लिए टाइम लग जाएगा, प्रोग्रेस बार पे दिखता है हम लोगों को, राइट। सो अगर हम लोगों को डेटा ट्रांसफ़र फास्ट करना है, अगर किसी से भी अगर हम लोगों ने डेटा ट्रांसफ़र फास्ट करना है तो फॉर फास्टर डेटा ट्रांसफ़र वी शुड अपग्रेड अवर मदरबोर्ड, राइट। सो नेक्स्ट इज डैमेज पार्ट्स, राइट। सो डैमेज पार्ट इन द सेंस, इफ़ और पार्ट इज डैमेज्ड ऑन द मदरबोर्ड, जैसे अगर कोई भी पार्ट डैमेज हो गया मदरबोर्ड पे तो ऑब्वियसली जैसे CMOS बैटरी है, CMOS बैटरी हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था इन द मदरबोर्ड, व्हाट इज CMOS बैटरी। सो अगर CMOS बैटरी डैमेज हो गया तो क्या नहीं होता, करंट, डेट एंड टाइम नहीं होता, अपने PC के जो हार्डवेयर सेटिंग्स है वो स्टोर्ड नहीं रह पाते। सो अगर CMOS बैटरी जो है वो हमारे मदरबोर्ड का डैमेज हो गया तो उसको अपग्रेड करने के लिए हम लोगों को मदरबोर्ड को अपग्रेड करना पड़ेगा, ओके। सो डैमेज पार्ट्स को अपग्रेड करने के लिए भी हम लोग मदरबोर्ड को हम लोगों को अपग्रेड करना पड़ेगा। यू वांट न्यू फीचर्स। सिक्स्थ इज यू वांट न्यू फीचर्स। इफ़ यू वांट एनी न्यू फीचर्स, राइट, अगर कोई न्यू फीचर्स चाहिए मदरबोर्ड पे, जैसे अगर हम लोगों को SSD लगाना है, हार्ड ड्राइव तो है, अगर SSD लगाना है तो दिस इज़ अ न्यू फीचर। इफ़ यू वांट टू अटैच वीडियो कार्ड और इफ़ यू वांट टू अटैच साउंड कार्ड टू योर मदरबोर्ड, देन इट इज़ नॉट ए इनबिल्ट, राइट, वीडियो कार्ड एंड साउंड कार्ड इज़ नॉट इनबिल्ट। अगर ग्राफिक्स कार्ड लगाना है तो ये सारे न्यू फीचर्स हो गए। अगर ये सारे न्यू फीचर्स हम लोगों को अपने मदरबोर्ड पे चाहिए तो वी नीड टू अपग्रेड आवर मदरबोर्ड। So these are the 6 reasons why we should upgrade our motherboard. So the next is troubleshooting problems of motherboard. Now troubleshooting means what? If your motherboard is not working properly, then we need to troubleshoot motherboard, means we need to check motherboard what are the problems. Troubleshooting means finding out the problems because of which the motherboard is not working. So first is means how many problems your motherboard can have. First is the motherboard receiving power, means आपका motherboard power receive कर रहा है क्या. Check the power supply to see if the fan is turning.
फ़ैन टर्न हो रहा है क्या मदरबोर्ड में। जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो फ़ैन जो मदरबोर्ड पे रहता है इट स्टार्ट्स मूविंग राइट। अगर वो मूव नहीं हो रहा है मीन्स कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। सो इट कुड बी अ प्रॉब्लम। इफ़ द CPU और मदरबोर्ड हैज़ अ फैन, सी इफ इट्स टर्निंग। चेक वोल्टेज गोइंग फॉर द पावर सप्लाई टू द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है then we need to check the voltage which is voltage power which is going to the motherboard. अगर लेस पावर आ रहा होगा तो मदरबोर्ड वर्क नहीं करेगा. So we need to check the voltage power also. Second problem could be check for the overheating. Power down the computer and allow the computer to cool. Power on the computer with the cover off. Means अगर ओवरहीट हो रहा है तो ओवरहीट अगर हो रहा है तो भी मदरबोर्ड वर्क नहीं करेगा. तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पावर डाउन द कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर को शट डाउन करके वापस स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर रिस्टार्ट करना पड़ेगा टू कूल. पावर ऑन द कंप्यूटर विद द कवर ऑफ. विद द कवर ऑफ मीन्स जो CPU पे कवर रहता है उसको कवर निकाल के डायरेक्टली पावर ऑफ भी हम लोग कर सकते तो वो भी करना पड़ेगा. थर्ड रीज़न इज check the motherboard for disintegrated capacitor. These are small components that might appear to be bulging. If sighted, replace the motherboard as soon as possible. जो कैपेसिटर रहते हैं मदरबोर्ड पे राइट. सो देर आर डिफरेंट कैपेसिटर्स ऑन द मदरबोर्ड. सो देर आर different capacitors on the motherboard. Like capacitor means small parts which are attached to the motherboard. If you have seen, there are small cylinder type parts in white color, in black color, which are attached to the motherboard. Okay, and it is used to supply the power to the motherboard. वो पावर सप्लाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज कैपेसिटर. ओके, सो these are the small components that might appear to be bulging. So it could be also a problem. Then next is the reset the CPU, adapter and memory chips. हम लोग रिस्टार्ट कर सकते हैं CPU को, adapter and memory chips को. And then the last is remove unnecessary adapters and devices and boot the computer. अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है सो द लास्ट ऑप्शन इज वी नीड टू बूट द कंप्यूटर. फॉर्मेट करना पड़ेगा कंप्यूटर को. सो दिस इज द different troubleshooting problems which can be occur on the motherboard. Okay, this can be problems which can be occur on the motherboard and because of it motherboard will not be working. Plug the computer into different power outlet and circuit if possible. Means कंप्यूटर को दूसरे किसी पावर सर्किट में प्लग करो. जो प्लग हम लोग लगाते हैं उसको प्लग को निकालो एंड दूसरे सर्किट में डाल के चेक करो. कभी कभी सर्किट का, घर के सर्किट का भी प्रॉब्लम हो सकता है पावर सप्लाई का. चेक द डिटरमाइन वेदर द मदरबोर्ड शॉर्टिंग आउट इन द फ्रेम. सो अगर मदरबोर्ड पे पावर, अगर लाइट का शॉर्ट आउट हो रहा है तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है. एंड द लास्ट इज चेक द CMOS बैटरी. CMOS is complementary metal oxide semiconductor as we have discussed. Because of CMOS battery motherboard could not be working. So because of CMOS battery it is used to store the hardware features. It is used to store the current, date and time of the computer. So there could be problem in the CMOS battery also. If CMOS batteries fail then computer could not store the hardware specification. current, date and time नहीं बताएगा. सो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है. CMOS बैटरी इज ऑल्सो यूज टू स्टोर द बूटिंग ऑपरेशन. जब कंप्यूटर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सारा बूट, कंप्यूटर स्टार्ट करना मतलब क्या, बूट करना. जो बूटिंग का प्रोसेस रहता है वो कहाँ से होता है. दिस ऑल द सेटिंग्स आर स्टोर्ड इन द CMOS बैटरी. सो CMOS बैटरी को भी चेक करना पड़ेगा. सो this was a chapter 2. We have finished the chapter 2 here. In the next video we will start the chapter 3 of CPH. Thank you.